At the hall, if they are hearing this voice, to please come in and be the part of this grand gathering. Ladies and gentlemen, honorable guests, academicians, students, the sincere, hard-working staff of Ministry of Rural Development and its various missions, the grassroots innovators, the institutional partners, and our friends from media. I welcome you wholeheartedly on the behalf of Ministry of Rural Development in this event of launch of Bank of Ideas and Innovations. It's a unique day, it's a unique ideal day before the Day of Independence of India, and we are celebrating ideas and innovations. And I believe among so many eyes, each one of us will find a little bit of I to feel related with, to feel excited by. Ministry of Rural Development, through its various missions, have taken initiatives in promoting innovations, particularly at grassroots level, in various states. Out of them, in the last 1.5 years, the initiatives at Bihar and Maharashtra have particularly stood out. We are fortunate to have few of those grassroots innovators here who would share their experiences, who would share their ideas, their journey, as to how they were able to think of unique solutions, unique answers to questions which are very particular at times to their context, but at times those answers, those solutions imbibe a solution matrix for problems for a lot of such issues being faced in the country. We also have partners from those organizations who have been taking up these grassroots innovations, shaping them up, understanding the business context and sustainability imbibed in them, then support them, then arrange funds for them, and then take them forward to what we call as an scalable level. We also have with us those on-ground staff of MORD who have walked and crossed various lanes and rivers and nalas of the villages of Bihar and Maharashtra in finding out those grassroots innovators and bringing and putting efforts towards identifying those people who are essentially going to be the flag bearers of the ideas and innovations for this country. I'm really happy in presenting a small video depicting that story and covering few prominent examples, particularly from these two states. And that event has been added specifically to underline the ingenuity and the innovativeness of those people who, although may not have been educated, may not have gone to the formal school system, but those who have the innate ability and courage to find solutions to the problem they face. Let's have a few minutes with a video on the grassroots innovators. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ही प्रगति की ओर बढ़ते कदमों को क्रियाशील बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने गैर कीटनाशक प्रबंधन यानी नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट परियोजना की ओर रुख किया। इसके प्राथमिक लक्ष्यों की सूची में कई महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जैसे कि खेती की लागत को कम करना, फसल नष्ट होने के जोखिम को कम करना,
खेत मशीनीकरण के माध्यम से किसानों और कृषि श्रमिकों की कार्य कुशलता में सुधार, 5,000 से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किए सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द्वारा चलाए गए इस परियोजना का प्रभाव कई तरह से सामने आया। केप फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने पोल्ट्री उत्पादन और पशुधन को विकसित करने के कुछ नए और अनोखे तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में खास पहचान बनाई है। एक सही तकनीक से उत्पादों का निर्माण करना, सशक्त डिलीवरी चेन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और संपोषण में विकास करना, ये सभी पोल्ट्री उत्पादन के अनूठे पहलू हैं। क्रोइलर का मॉडल ऐसे उपायों को ढूंढता है जो निवेश के आसान तरीकों को ढूंढकर सार्थक प्रयासों से ऐसे साधनों को अच्छा बनाता है जो ग्रामीण दायरों में समाहित हो सके। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक हैसियत बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीसी लिमिटेड ने गैर कृषि कार्यों के सहारे महिलाओं की आजीविका के नए रास्तों की तलाश की है। उद्देश्य है अगरबत्ती निर्माण के लघु उद्योग में शामिल होकर महिलाओं की नियमित और बेहतर आय के स्रोत विकसित करना। आईटीसी अपने नवाचारी प्रयोग के माध्यम से महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण की बेहतर प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। पीपल ट्री वेंचर्स युवाओं को प्रशिक्षित कर इनमें उद्यमिता का विकास करते हुए इन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है। संस्था गांव में पढ़ाई छोड़ देने वाले युवाओं को निर्माण उद्योग में काम करने के लिए 1 सप्ताह का सघन कौशल विकास प्रशिक्षण देती है। युवा किसी भी राष्ट्र के आकर्षक मानव संसाधन होते हैं। ऐसे में इन ग्रामीण युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए तो न केवल ये समृद्ध होंगे बल्कि राष्ट्र को इनकी उत्पादकता का लाभ मिलेगा। वित्तीय समावेशन के तहत सेब बैंकों की पहुंच से दूर लोगों को बैंक कारोबार के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। संस्था ने अपने अभिनव दृष्टिकोण से गांव में ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSP को एक बैंक की शक्ल देकर लोगों को बैंक संपर्क के द्वारा उनके पैसे की बचत के लिए प्रेरित कर रहा है। सेब का लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है। ग्राम विकास ने प्रोजेक्ट मूवमेंट एंड एक्शन नेटवर्क फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज मंत्रा के जरिए घरों में शौचालय और पानी के नलों की समुचित व्यवस्था कर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी लाते हुए उत्पादकता को बढ़ाने की पहल की। संस्था ने गरीबों को सरकारी राहत कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ उठाने और सूचना के अधिकार जैसे सशक्त औजारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। बेरोजगारी। इस समस्या से जूझने हेतु ग्रीन लीफ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत संकलित कृषि विकास के लिए मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी की सुविधा नामक परियोजना की शुरुआत की। गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी, भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान इस परियोजना के मुख्य लाभार्थी हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 200 पौधे पूरे 5 वर्षों के लिए 4 ग्रामीण घरों को प्रदान किए जाते हैं। ये उन्हें लगातार रोजगार प्रदान करता है। ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में खाना पकाने, हीटर, रोशनी, कृषि कार्य और उद्यम आदि के लिए ऊर्जा के विश्वसनीय समाधान स्थापित नहीं हो पाए हैं। संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग SSP अपने विपणन साझेदार कंपनी श्योर के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से कुछ महिलाओं को सखी के रूप में चयनित कर ग्रामीण स्तर पर उद्यमियों का नेटवर्क तैयार करती हैं। प्रशिक्षित महिलाएं गांव से साप्ताहिक बाजारों में इन उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं। संस्था अपने नवाचार को बिहार के लिए भी काफी उपयोगी मानती है। IPNI ने मक्का
उत्पादन करने वाले किसानों की बुनियादी समस्या को सुलझाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टूल नामक ये तकनीक मक्के की खेती के लिए न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट की तरह काम करता है। ये टूल खेतों में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों का आकलन करता है, साथ ही उत्पादन लक्ष्य के हिसाब से खेतों में खाद की आवश्यक मात्रा को निर्धारित करता है। बिहार के अनेक क्षेत्रों में इस टूल के प्रयोग से मक्के के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। में एक लकड़ी चढ़ने वाली मशीन चलती है, उसी मिल पे जो है उसको एक स्टाफ काम करते हैं जो काफी कम सुनते हैं। वो बोलते थे कुछ करने के लिए कर देते, कुछ लकड़ी को टेढ़ा काटते थे। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, कुछ दिनों के बाद हमने ये मशीन को बनाई। मैंने एक लॉक छेड़ीनेट बनाया जो बेकार के प्लाट को श्रेणी में था मात्र 70 रुपये में, और उस छेड़ीनेट का उपयोग जो गरीब लोग हैं और कम सुनते हैं वो भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इस पद्धति को हमने अपनाकर और हमने भरपूर अपनी जिला का फसल का उत्पादन किया। मैं 2002 में एक्सीडेंट कर गया, मेरा फाउंडेशन कर गया, मेरे पास रोजगार का साधन समाप्त हो गया। फिर मैं संजय सिंह से मिला और मशरूम की खेती उन्हीं के निर्देशन में मैं प्रारंभ किया। मशरूम 2 दिन में खा जाता है और इसका बाजार भी मुझे नहीं मिला, और मैंने मशरूम का बाय प्रोडक्ट अपने स्तर से तैयार किया। इससे हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे समूह के जो भी महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। मशरूम का हर चीज बना लेते हैं, पाउडर भी बनाकर बेच देते हैं। और हमारे लिए पैक होने के बाद हमारा आधार बना हुआ है, हमारा जीवन साथी बना हुआ है मशरूम। साइकिल था हमारे पास, जिस साइकिल को हम बेचना चाहे कम पैसा लगाया 100 रुपया, तो हम बोले कि काय के लिए लेंगे, उसको बेचते हैं, कोई दिमाग लगाने तकलीफ बन जाए तो अच्छी बात है। लगाते लगाते दिमाग में लगाए तो हल्का सिस्टम हमारा बन गया हाफ साइकिल। फिर इसको जो है ले गए जैसे जैसे बनाते गए वैसे वैसे वो जगह बनाते गया, बनाते बनाते जो है बनाकर पूरा ठीक किया। तो बोले 700 रुपया मांगा, हमने 700 रुपया इससे जो है हमारा गाड़ी गोभी का खेती थोड़ा बहुत कर लेते हैं, साग का खेती कर लेते हैं। उसके बाद जो मकई की खेती है जो जहाँ की 6-7 आदमी हाथ करते हैं, वहाँ जो है हम लोग 2-3 आदमी काम कर लेते हैं। इससे हमारा गेहूँ सीधी का यहाँ जो है बहुत सारा अच्छा बिजाई से हो रहा है। जमुना पारी से देसी बकरी का प्रयोग निश्चित रूप से बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अब जहां हमारा 15 से 20 किलो का वजन होता था, अब वही हम 40 से 50 किलो का वजन कर देते हैं। और जहां बड़ी बकरी में 1 बच्चा होता था, वहां देसी और जमुना पारी के क्रॉस से 4 बच्चे आते हैं, यानी 4 गुना का मिनिमम लाभ होता है। इससे शोषित पीड़ित दलितों का उत्थान होगा, जिसको हाईटेक एंड कॉमर्शियल डॉट फार्मिंग की आड़ ने करके दिखाया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में आग, लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए।
देवियों और सज्जनों, ये इन छोटे बड़े गांवों में छिपे हुए ऐसे ऊर्जा स्रोतों का ही कमाल है कि बकरी उत्पादन में भी इतनी सारी साहस, हिम्मत और ऑलमोस्ट जिसको हम कहते हैं रणभेरी भरने वाली बातें और दोहे और कविताएं वो कह सकते हैं। शायद इससे पहले ही और शायद इससे पहले कभी भी बकरी उत्पादन से संबंधित किसी ने युद्ध घोष नहीं किया होगा। तो ऐसे कुछ ग्रासरूट अन्वेषणों के प्रति ये हमारी एक छोटी सी भेंट थी, उनको एक पहचान देने की हमारी एक पहल थी। और सबसे अच्छी बात है कि उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति इस प्रांगण में आज मौजूद हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी। और जैसा कि इस वीडियो के आखिरी क्षणों में लिखा था, इनोवेट, इंप्लीमेंट एंड इम्पैक्ट। आविष्कार करें, प्रयोग करें और उसके बाद प्रभाव देखें। आज जो पूरे दिन भर चलने वाली कहानियों का आदान प्रदान है, वक्तव्यों का आदान प्रदान है, वो आदान प्रदान इन्हीं तीन पहलुओं पे, इन्हीं तीन पहलुओं से जुड़ी हुई बातों से निकल के आएंगी। किन लोगों ने आविष्कार किए हैं, अन्वेषण किए हैं, कुछ लोगों ने उन अन्वेषणों, उन आविष्कारों को अपनाकर एक सस्टेनेबल वेंचर बनाया है, और कुछ लोगों ने उस वेंचर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाकर भारतीय समाज और गांवों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। और इन प्रभावों की शुरुआत छोटे आविष्कारों से होती है, जो हमने आस पास गांव घरों में छोटी मोटी समस्याओं को पहचान कर और उनका हल निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं, उनसे निकल कर आती हैं। और इन प्रयासों से अपनी जान पहचान हम शुरू करते हैं हमारे एक युवा इनोवेटर श्री ऋषिकेश कुमार जी को मंच पर बुलाकर। ऋषिकेश कुमार, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। ऋषिकेश कुमार जो है बिहार के मधुबनी जिले के रहिका नामक गांव से आए हुए हैं और ये बीएससी के छात्र हैं। और इससे पहले मैं इनको 5 मिनट दूं, इनके बारे में ये कहूंगा कि ये इनोवेटर नहीं है, ये सीरियल इनोवेटर हैं। और हर 6 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद इनका एक नया इनोवेशन जो है मार्केट में, अखबारों में, अनेक पत्रिकाओं में और अनेक मंचों पर इनके आविष्कारों की प्रशंसा हुई है। तो ऋषिकेश कुमार जी, हमें बताएं अपने आविष्कार के बारे में। नमस्कार, मैं बिहार मधुबनी जिला से आया हूँ। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। बचपन से ही विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा रही और रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए मैंने 3 आविष्कार किए हैं अब तक। बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो एक मेले में मैं गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक कैमरा बिक रहा था, जो बच्चे देखते हैं ना, बाइस्कोप, वो। तो मैंने सोचा कि इस कैमरे में एक बार में एक ही बच्चे देखते हैं और अपनी दोनों आँखों से ना देखकर एक आँख से ही देखते हैं। तो इस बाइस्कोप से जुड़े इन समस्याओं को दूर कर मैंने एक मिनी प्रोजेक्टर बनाया। सोचा मैंने कि क्यों ना एक ऐसा मिनी प्रोजेक्टर बनाया जाए जिससे कि जो प्रतिबिंब बनते, इमेज बनते हैं पर्दे पे, उस बच्चे को देखकर बच्चे खुश होते हैं। एक खेल का संसाधन होता है वो। तो इस प्रकार मैंने एक मिनी प्रोजेक्टर बनाया। और फिर मैंने एक थर्मोकोल कटर मशीन बनाया। तो थर्मोकोल की कटाई जैसे कि लोग ब्लेड से करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के नेम प्लेट, सजावटी वस्तु बनाने के लिए, तो ब्लेड से काटते हैं थर्मोकोल को हम लोग। तो कटाई के क्रम में थर्मोकोल से छोटे छोटे कण गिरते हैं, उसका कुछ भाग थर्मोकोल का कुछ भाग वेस्टेज चला जाता है, काटने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा थर्मोकोल कटर बनाया जाए जिससे कि थर्मोकोल की कटाई काफ़ी आसानी से हो जाए और जो समस्या थी छोटे छोटे कण बनने का, गिरने का, तो वो दूर हो जाए। तो मैंने इस प्रकार एक थर्मोकोल कटर बनाया जिससे कि थर्मोकोल की कटाई होती है और कटाई क्रम में थर्मोकोल का थोड़ा सा भाग वेस्टेज नहीं जाता, बिल्कुल स्मूथली कटते हैं। छोटे छोटे कण, पॉल्यूशन का निर्माण थोड़ा भी नहीं होता उससे, और वो रिचार्जेबल है, बैटरी पे भी चलते हैं। और तीसरा जो
मेरा इनोवेशन है वो लो कॉस्ट हेयरिंग एड। हेयरिंग एड मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। 6,000-7,000 की एक मशीन आती है, जिस मशीन को अमीर लोग हैं जो कम सुनते हैं वो तो ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं कम सुनते हैं वो उस मशीन को ख़रीद के यूज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मैंने एक लो कॉस्ट हेयरिंग एड बनाया मात्र 75 रुपये की। जो अमीर लोग हैं वो तो उस मशीन को ख़रीद के यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं और वो कम सुनते हैं वे भी उस मशीन को आसानी से ख़रीद के अब यूज़ कर सकते हैं। तो और एक बात यह है कि जो हेयरिंग एड मार्केट में आती है उसमें बैटरी लगती है 12, और मैंने जो बनाया 75 रुपये में, तो वो रिचार्जेबल है और उसकी रेंज 5 मीटर्स हैं। वो 5 मीटर्स तक एक रूम में बैठे आदमी सुन सकते हैं। 1 घंटा तक चार्ज करने से हेयरिंग एड को 12 घंटा तक यूज कर सकते हैं आसानी से हम। अभी मैं बीएससी में पढ़ रहा हूँ। पिछले साल आईसी कंप्लीट करने के बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण मेरी नामांकन इंजीनियरिंग में ना हो सकी और आगे मैं पढ़ाई करना ही चाहता हूँ। सरकार ये सोचती है कि मेरा ये तीनों इनोवेशन काफ़ी सफल है, तो सरकार से मेरी ये मांग है कि मुझे इन तीनों इनोवेशन का पेटेंट मिले। और तकनीकी जानकारियाँ अभी मैं जुटा रहा हूँ ताकि इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ और भी विज्ञान के क्षेत्र में कर सकूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि कुमार जी। ऋषिकेश के बड़े ही शांत चरित्र और शांत व्यक्तित्व के पीछे विज्ञान का कितना बड़ा तूफान बैठा हुआ है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और जब हम इनके आविष्कारों को देखते हैं जो जैसा कि मैंने कहा हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर साल नए नए प्रकार के रूप में बाहर आता है, तो समझ में आता है कि कितना टैलेंट इनमें भरा पड़ा है। पिछले 1.5 सालों में जो NRLM के अंतर्गत इनोवेशन संबंधित इनिशिएटिव्स हुए, उसमें ऐसे ही अनेक प्रतिभागियों ने अपने आविष्कार सबमिट किए जो कि या तो ग्रास रूट इनोवेशन लेवल पे थे या ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे पहुंच चुके थे। करीब 1700 ग्रास रूट इनोवेटर्स ने अपने आविष्कारों, अपने अन्वेषणों के प्रति अपनी खोज, अपनी समझ और अपने बिजनेस प्लान को सबमिट किया और बिहार से करीब 550 सस्टेनेबल रूप में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स को सबमिट किया गया। महाराष्ट्र से भी 350 सबमिशंस हमारे पास आए, जो NRLM द्वारा संयोजित अनेकानेक कार्यक्रमों में अलग अलग स्टेजेस पर जिन पर विचार विमर्श हुआ, उनमें से कई अन्वेषणों, आविष्कारों को पुरस्कारित भी किया गया। अपने ग्रासरूट इनोवेटर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बिहार के अररिया जिले से आए हुए श्री योगीलाल सिंह जी को। योगीलाल सिंह जी हमारे गांव के न्यू हॉलैंड और हीरो साइकिल्स के क्रॉसओवर हैं और इन्होंने एक नया हल का आविष्कार किया है। योगीलाल जी, आप हमें अपने आविष्कार और जीवन के बारे में बताएं। नमस्कार। मैं एक बहुत कमज़ोर घर का आदमी हूँ। बहुत गरीब थे। हमारे पास सिर्फ 10 कट्ठा ज़मीन है। उस 10 कट्ठा ज़मीन को जोतने के लिए जो है हमको बहुत परेशानी आ रहा था, कारण कि अब अपना मजदूरी करने के लिए जाएं, एक तो हल बैल लाते हैं तो 200-250 रुपया वो लेता है, दिन भर अपना भी वहाँ खड़ा होना पड़ता है। तो उधर से भी पैसा गया और काम भी मेरा गया। हमारे पास एक पुरानी साइकिल थी, मिस्त्री का काम करता हूँ मैं। तो पुरानी साइकिल था तो वो बच्चे लोग हमारा उसको बेचने का शुरुआत किए। हम दरवाजे पे आए, देखें तो वहीं उसको रोकें कि भाई ऐसा करो कि इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसको तुम बेच लेना। उसमें जो है दिमाग लगाना शुरू किए, पूरे साइकिल में हल बनाना शुरू किए तो बन नहीं रहा था। 2 रोज़ लगातार ऐसे ही करने लगे तो गाँव के लोग बोलने लगे कि काहे के लिए इसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं साहब जी। हम उनको कुछ नहीं बताएं। बाद में तीसरे रोज़ जो है हाफ साइकिल में वो हमारा सेटिंग किया, पतला तार जो था वो सेटिंग किया। उसी वक्त जो है उसको हमारे पास सामान था, काट करके उसको लोहार के पास ले गए। लोहार के पास ले गए, जैसे बताते गए वो उस ढंग से जो है उस हाल को बना के तैयार कर दिया। जब तैयार कर दिया उसको 2 बार, तीसरा बार में बिल्कुल फर्स्ट क्लास का जब चलना शुरू हुआ, बहुत खुश हुए हम, बहुत खुश हुए कि भाई हमारा काम जो है इससे
हो जाएगा। अब उसको लेके आए अपना काम जब करने लगे गांव में, अब गांव वाले देखते हैं तो वो भी कहते हैं भाई 2 घंटा के लिए हमको दे, कोई कहते हैं 2 घंटा के लिए हमें भी दे दो। वो उस रोज़ हम बोलेंगे भाई किसी को नहीं कहा कि तुम लोग जो है हंस रहा था हमको देख के, आज तो हम बना लिए इसको, तो अपना काम अपना चलाते हैं। नहीं भाई दो हमको, चलो भाई तुम भी लो। ऐसे गांव वाले जो है 5-6 तो हम करीब दे चुके हैं, गांव में भी 10-15 का और भी लोग बोले हैं कि हमको बना के दो। अब इससे जो है हम बहुत अच्छा से अपना कारोबार करते हैं। जैसे कि सवेरे सो के उठते हैं व्यायाम करने के लिए, तो हम 2 घंटा इसी में चल लेते हैं, तो हमारा सारा काम हो जाता है, खेती भी हो जाता है और व्यायाम भी हो जाता है। ठीक है ना सर, ये बहुत अच्छे से हम अब बाद में जो हमारा टाइम बचता है उसमें जो है बाहरी काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत बचता है तो शाम में। और मकई का बीजने के लिए जो है वो जहाँ 5 आदमी लगता है वहाँ हम 2 आदमी काम कर लेते हैं, 3-4 का बचत हमको हो जाता है। श्री विधि गेहूँ लगाने के लिए उसमें भी हमारा बहुत शानदार से काम चल जाता है। उसके बाद जो हम सोचे ये बात कि अगर मकई लगाते हैं 18 इंच के ऊपर, तो इसका निकौनी करने के लिए जो इसमें कुछ और जोड़ा जाए, तो उसके लिए हम क्या किए कि कोई 1 किलो 1.5 किलो लोहा लगा उसमें हमारा। फिर उसको जो है 5 फली बनाए उसमें, वह नट बोल्ट के ऊपर हमारा फला सेट है, फाला सेट है। नट बोल्ट पे हमारा मकई जब कुछ आ गया पौधा हमारा निकौनी के बराबर, फाला जो है वो खोल के रख देते हैं साइड में। ये निकौनी वाला मशीन जो बनाए हैं इसको सेट कर देते हैं उसमें। उससे जो है हम जहाँ 4 मजदूर लगते हैं हम अकेले काफ़ी हैं, इतना बचत हम कर लेते हैं। योगीलाल जी ने बड़े सहजता से जाने कितने इनोवेशंस के थ्योरीज को और पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे स्मॉल पॉइंट्स को अनजाने में हम सबको अवगत करा दिया। इतनी खुशी आविष्कार करने के बाद बहुत ही कम आविष्कारों में होती होगी जितनी खुशी इनके चेहरे से झलक रही है। एक छोटी सी कहानी ये है, हमारे पिछले मुलाकातों में योगीलाल जी ने बड़े ही अश्रुपूर्ण शब्दों में ये कहा कि मैं जिस गांव में रहता था वहां वो गांव जिस समय एनआरएलएम का ये इनिशिएटिव चल रहा था ग्रास रूट इनोवेटर्स को ढूंढने का, उस समय उस गांव के आसपास बाढ़ आई हुई थी। विद द परमिशन ऑफ द हाउस इफ तो अब जो हमारा गांव है कोई 500-600 घर का आबादी है, उस गांव में चारों तरफ से पानी है। कुछ एक नदी आया है, 2 लाइन खींच दिया है 2 तरफ से, तो निकलने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं है। आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं धन्यवाद है उसका, जो हमको खोज के पता लगा करके हमारे गांव में गए थे। इतना पानी को पानी नहीं समझे वो, उनको गांव वाले रोकें कि भाई पानी है बहुत ज़्यादा, अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, काहे के लिए जाते हैं गीला होने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा हिम्मत लगाए कि हमारे गांव तक पहुंच गया और हमारे दरवाजे पे पहुंच गए। कीचड़ लग गया उनके शरीर में, हम कहें साहब जी पानी से धो देते हैं, नहीं ऐसा है नहीं, हम फिर जाएंगे वापसी। फिर उनको वापसी रोड पे ले जाके पहुँचे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती चित्रलेखा देवी जी को। चित्रलेखा जी गया जिले से आई हैं, वहाँ के एक गांव की रहने वाली हैं और ये एसआरआई जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है उससे संबंधित जो इनिशिएटिव्स हुए एनआरएलएम के और उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे जुड़ी हुई दीदी हैं श्रीमती चित्रलेखा देवी जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चित्रलेखा देवी है, कुरमामा गांव से और बोधगया प्रखंड और गया जिला से बिहार से आई हूँ। मैं एक गरीब घर की थी, मेरी शादी भी गरीब घर में हुआ। मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ रही थी तो मेरी शादी हो गई। तब मैं सोचे कि कुछ काम कर सकती थी, इससे गरीबी मेरी दूर हो जाएगी। तो एक मेरे गाँव में एक जीविका संस्था है, उसमें जीविका स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए वो 10 से 12 दीदी को समूह बनता है, तो उसमें मैं जुड़ गई। उसमें ये हमको पता चला
कि ये समूह में जुड़ने से हमको जैसे साहूकार से 2% सूद लेते हैं तो साहूकार से 5% सूद मिलता है। अगर मैं ये अति समूह से अगर हम सूद लेंगे तो हमको 2% सूद मिलेगा। तो ये में से हमको बहुत लाभ मिला, क्योंकि मेरी गरीब हालत थी। मैं साहूकार से सूद लेने जाते थे तो 5% सूद मिलता था, अगर ये से हम लेते हैं तो 2% सूद मिलता है। और मैंने इसी समूह में एजेंडा होता है, तो एजेंडा में हम लोग को पता चला कि इसमें कोई अगर दीदी होगी तो काम करना चाहती है तो करेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें काम में जुड़ जाएं तो हमको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए हमको बोध गया प्रशिक्षण मिली, तो उसमें 3 दिन का प्रशिक्षण मिली। तो उसमें प्रशिक्षण में SRI, SWI और सब्जी का खेती कल मिला। तो उसमें ये हुआ कि अगर इस विधि से हम खेती करेंगे तो हमको इसमें फ़ायदा बहुत है। इसमें बीज का भी कम लगेगा और उपज भी ज़्यादा होगा। तो मेरे पास तो 10 कट्ठा ज़मीन कुल था, खाने के लिए पूरा साल का नहीं होता था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये काम हम करना चाहें तो कर लेते हैं। तो फिर हम गांव की जो 40-50 महिला थी और किसान भाई थे उनको हम बताएं कि अगर ये विधि से काम कीजिएगा ना तो आपको खाद जो खाने के लिए साल भर का नहीं अन्न होता तो ये साल भर के लिए पूरा हो जाएगा। तो बोले कि तुम पागल तो नहीं हो गई है कि ये विधि अपना कर तुम हमको भी फंसाना चाहते हो। तो कहे नहीं, पर हम अपने खेत में कर देते देखेंगे कि अगर हमको ज़्यादा उपज होगा ना तो आप भी लोग भी कीजिएगा ये विधि से। तो हम अपना खेत में पहले उपयोग उसको करके देखें, तो हमको ज़्यादा हुआ। तो उन लोग सोचे कि हमको भी बताइए होगा, तो उन लोग भी करने लगे ये विधि से खेती, तो उसको उपज ज़्यादा हुआ। उसमें रासायनिक खाद ना डालकर जैविक खाद का प्रयोग होता है उसमें भी। तो हमने इससे उसका खेत का शक्ति होता है ना तो बढ़ जाती है। तो हमने सोचे कि क्यों ना ये खाद गोबर का बना हुआ रहता है, हमने सोचे कि क्यों ना ये खाद बनाने के लिए हमको विधि बताया जाए तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और दीदी जो खरीद के लाती है खाद उसमें पैसा लगता है, तो क्यों ना हम ये खाद अपने खुद बनाएं और अपना खेत में भी डालें और हमको भी पैसा मिलेगा अगर बिक्री करेंगे तो खाद बनाने के लिए हम विधि बोले कि भैया हमको अगर ये विधि बता दीजिएगा तो हम अपने गांव में सब दीदी को बताएंगे, सब किसान को बताएंगे और उनको बनाने के लिए भी बताएंगे, तो उसको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम खरीद के लाते हैं तो पैसा लगता है हमको। और तो उस विधि को हमको बनाने के लिए गाय का जो गोबर होता है जो जानवर का, वो गोबर सुखाकर और उसको पीठ में डाला जाता है, उसमें केचुआ 1 kg डालकर बनाने के लिए बताए। तो हम लोग वो विधि अपना लिए और उसको बनाने के लिए बताएं। फिर हमको उसने बताया कि अगर एक प्राकृतिक खेती करने के लिए विधि होता है तो उसे खेत में जैसे रासायनिक खाद डाल रहे हैं ना तो हमको खेत खराब हो रहा है, बंजर हो जाएगा कुछ दिन में, जैसे आने वाली पीढ़ी होगा उसको लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि मेरे पास जो बंजर हो जाएगा तो खाएंगे क्यों उपजा कर। तो उसने बताया कि अगर ये प्रशिक्षण मिलेगा तो आप दीजिएगा, तो बोले कि हाँ। तो उसमें हमको 6 दिन को पटना में महाराष्ट्र से तो सुबह पालेकर दिन आए थे वो दिवाए थे। तो उसने बोले कि अगर ये प्राकृतिक विधि से खेती कीजिएगा ना तो आपको जो गाय है, गाय का दूध देसी गाय है उसका गोबर और उसका गौमूत्र और बेसन जो दाल का बेसन होता है उससे जैविक खाद नहीं, रासायनिक खाद नहीं, वो खाद में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद नहीं। उसका अगर इसका जो बनाइएगा खाद वो जैविक खाद है, वो खाद का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें कीट लगता है तो अगर दवा का प्रयोग करने पड़ता है, वो जहरीला दवा जो होता है जो खेत को लिए अन्न को लिए सबसे ज़्यादा खराबी हो जाता है उसको लिए। तो उसने बोला कि अगर ये दवा का प्रयोग करें तो नीम अस्त्र बनाइए। उसमें नीमास्त्र बनाने के लिए नीम का पत्ता और गाय का गोबर और गौमूत्र बनाने के लिए बताए, उसका भी हम प्रयोग बनाए, उसको भी हम एक काम किए। फिर मुझे टॉनिक का उसका ताकत के लिए दावा जो हम लोग डालते हैं, तो दावा डालने के लिए हमको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पड़ा, वो भी हम बताएं। और उसको जो वनस्पति का पत्ते होते हैं, शरीफा का पत्ता, करंज का पत्ता, उसका पत्ता का उपयोग करके उसको दावा हम बनाए, उस पत्ते पर छिड़काव किए, उससे हमको बहुत लाभदायक हुआ। और मैं इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ये सब काम जो मेरे ज़िला में हो रहा है, गांव में हो रहा है,
क्यों नहीं ऐसे सब जिले में हो जाए तो सब दीदी को फ़ायदा होगा, सब किसानों को फ़ायदा होगा। और मुझे भी ये सब काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि ये सब दीदी भैया सब करें। और मुझे एक चित्रलेखा दीदी से थोड़ी काम चलेगा, क्यों ना सारे दीदी करे। और ये फ़ायदा यहाँ तक ले मुझे मौका मिला है कि अपने राज्य में ही नहीं बल्कि राजधानी में करने का मौका मिला है। इसीलिए मैं आपको सभी को नमस्कार करते हैं। It's not only the innovation, but how much a proactive strategy to adopt the innovation can change people at grassroots level. Not only their economical well-being, but also their social well-being, their well-being at family, the larger question of their self-identity, self-respect, and an ability to feel that we are self-reliant. These are the impacts which comes when we take proactive steps to adopt innovations, to adopt the courage to do something. So, सभागार की ओर से मैं चित्रलेखा देवी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी भाव भरी और ऊर्जस्वित वक्तव्य हमको दिया। मैं चाहूँगा, हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे फेसबुक, ट्विटर और जो बाकी ऑनलाइन टूल्स हैं उसको एक बार यहाँ उपस्थित गेस्ट्स को दिखा दें। We are live on these different internet engines. On Twitter, we are on Facebook. We are updating it constantly as we are progressing and moving through this event. We are also doing it live YouTube. My team, if they could show the YouTube link. I believe we would be able to showcase the YouTube link in a short while. So, moving on with our program. Now I would like to invite, बल्कि मैं ये बातें हिंदी में कहूँ तो बेहतर है, ऐसे ही बहुत सारे प्रयासों का एक उदाहरण आंध्र प्रदेश से आता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से श्रीमती अंजमा है। अंजमा जी CMSA से जुड़ी हुई, जैसे चित्रलेखा देवी जी थी वैसे ही श्री जो मेथड है उससे जुड़ी हुई कृषि प्रयासों से संबंधित इन्होंने अपनी इनिशिएटिव ली और उससे इन्होंने अपना जीवन, अपने आसपास के लोगों का जीवन कैसे प्रभावित किया, ये बातें अपनी ये रखेंगी। इनकी भाषा तेलुगु होगी। हम कोशिश कर रहे हैं हम इनकी भाषा को उसी समय इंग्लिश में भी लाइव रखेंगे। टीम, इफ वी कुड कम अप विद द ट्रांसलेशन ऑफ अंजुम। సభకంతా నమస్కారము. మా ఊరు వచ్చి మడకశిర మండలము, అచ్యుతాపురము, మడకశిర మండలము, మా జిల్లా కోసం వచ్చినాను నేను. మేము ఎస్టీలు ఇక్కడ ఏమొచ్చినామంటే చాలా నేను బీదోళ్ళు ఎట్లా గడ్డకు పడాలంటే మేము ఫస్ట్ పొద్దు జనం అంతా కలిసి సంఘాలు జరిపి మన ఊర్లో అందరూ ఉండారు. మాకేం తెలియదు అప్పటికి. తెలియక ఉండిన దానికి మడకశిర వాళ్ళు వచ్చి సంఘాలు జరపాలని చూపించి ఒక్కొక్క జనం అంతా సంఘాలు జరిపించి పిల్లోళ్ళని అంతా చదివించి వాళ్ళు ఎట్లా ముందుకు రావాలా, ఏం చేయాలా, ఎట్లా వాళ్ళు అప్పులు కట్టాలా, చిన్న అప్పులు ఎట్లా కట్టాలా, పెద్ద అప్పులు ఎట్లా కట్టాలా, పిల్లోళ్ళని వాళ్ళు బీదోళ్ళు కదే వాళ్ళు ఎట్లా ముందుకు తేవాలా అని అంతా సంఘంకి పోయి మేము లీడర్ అయిన దానికి అంతా చూపించి ఊర్లో అంతా సంఘాలు జరిపి చేసిన దానికి మళ్ళీ గ్రామ సంఘం చేసిరి. గ్రామ సంఘం చేసి అక్కడ లీడర్ తీసుకుంటారు. నన్ను లీడర్ తీసుకుంటే ఇంకా గ్రామ సంఘం నుండి పొద్దు సంఘాలకు ఒక గ్రామ సంఘం లీడరు వాళ్ళకంతా పోయేది, వాళ్ళు ఎట్లా సంఘాలు జరుపుతారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎట్లా వాళ్ళ పిల్లోళ్ళని ఏం చదివిస్తారు, వాళ్ళకి ఏం పెడతారు, ఏం లేదు అని సంఘం తగ్గిపోయి బీదోళ్ళకి అదే వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఎట్లా సంఘాలు జరుపుతారు అని మేమంతా పోయి చూసి గ్రామ సంఘం లీడర్ అయిన దానికి మేము అట్లా అంతా చూస్తూ ఉంటాం ఊర్లో. ఇంకా అది అయిపోయినాక మళ్ళీ నేను ఎట్లా గడ్డకి రావాలా, మా ఇంట్లో నేను బీదరికి ముంటాం కదే అంత చిన్న పిల్లల్ని చదివించుకొని గడ్డకు వచ్చేసి మేము ఇల్లు కట్టుకున్నాం. కొంచెం ఇల్లు కట్టుకొని తిరిగా గ్రామ సంఘం నుండి మా మడకశిర మండలంలో సెక్రటరీ అయిన దానికి అక్కడ ఎంపీఎం ద్వారా నన్ను సబ్ కమిటీగా తీసుకొండ్రి.
సబ్ కమిటీగా తీసుకొని ఈ వ్యవసాయం ఎట్లా చేయాలా, ఏం చేయాలా, కషాయాలు ఏం చేయాలా, ఫస్ట్ మనం వ్యవసాయం ఎట్లా చేయాలంట, వ్యవసాయ దుక్కులు చేయాలా, దానికి ఏం మందు చెల్లాలా, ఏం చేయాలా, చుట్టూ బారడు కాపు వేయాలా, బారడు కాపు వేస్తే మనకి ఆ పురుగులు పడకుండా శనగ చెట్లు ముందుకు వస్తాయి అని బారడు కాపు వేయాలా. జొన్నలు, సజ్జలు, జొన్నలు, అలసందలు, పెసులు అవన్నీ వేస్తే లోపలికి అది రాకుండా ఉంటుంది. అట్లా అయిన దానికి మరి ఇంకేం చెప్పాలా, పోయి మేము సబ్ కమిటీ నెంబర్ అయిన దానికి ఊరూరికి పోయి మనము అంతా ఇట్లా కాదు, ఇట్లా బీది రైతులు ఎట్లా బతకాలంటే వాళ్ళు ఎంపీఎం ద్వారా 10,000 రూపాయలు ఇచ్చిరి. వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఊర్లో నలుగురికి 10,000 దుడ్లు ఇప్పించి దీన్ని ఎట్లా చేయాలి, 5,000 నీళ్ళోళ్ళకి, ఇంకా 5,000 వీళ్ళకి, 5,000 తీసుకొని ఎట్లా చేయాల, కాలెకరా పుల్ల పంటలు చేయాల, కాలెకరా శ్రీరాగి వేయాల. శ్రీరాగి వేస్తే అది ముందుకు వచ్చేస్తాం. ఎట్లా అంటే శ్రీరాగి తినేకవుతుంది, పుల్ల పంటలు కూరాకు, కొత్తిమీర, పలకలాకు, మెంటాకు అన్నీ వస్తాయి. గడ్డి జాతి, తీగ జాతి ఇవన్నీ వస్తే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. ఏలంటే స్కూల్ పిల్లోళ్ళు ఊర్లో బాగుంటారు కదా, స్కూల్ పిల్లోళ్ళకి మంచిది మందులు లేకుండా అట్లా వాడి మనం గొర్రెల మంద, జీవాల మంద పెడితే పిల్లోళ్ళకి అవకాశం బాగుంటుంది అని చెప్పి అట్లా ఊరూర్లోనే పోయి చెప్పించి అట్లంతా చేపిస్తూ ఉండాను ఎంపీఎం ద్వారా. ఏలంటే మనం దాంట్లోకి పోయిన దానికి ఒక 10 జనం మంచి చేయాలా, మనం వాళ్ళని ముందుకు తేవాలా. వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చిన దానికి వాళ్ళు దాచుకొని ఇట్లా చేయకూడదు, రైతులు కాదు మనం బీదోళ్ళు ఎట్లా రావాలా, వాళ్ళ ముందుకి ఏం చేయాలా, వాళ్ళ బిడ్డలు ఎట్లా రావాలా అని వాళ్ళకంతా చెప్పి నేను ఎంపీఎం ద్వారా పోయి ఊరూర్లోన అంతా చేపిస్తూ ఉన్నాను సార్. మా దీనికి ఎన్నసూకి కూడా వచ్చిండే, మా మడకసిర మండలంకి సుఖి మేడం వచ్చిండే. ఏలంటే ఆన్సుకి మేడం అని ఆన్సుకి మ్యాన్మార్ లీడర్ ఎంపీఎం ద్వారా వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తారో, ఎట్లా ముందుకు వస్తారో, వీళ్ళు ఏం చేస్తారో అని చూసేకి వచ్చింది. మేము అక్కడ శనగ చెట్లు వేసి, సొప్పేసి, జొన్నలు వేసి, సజ్జలు వేసి మేమేమేమి పెడతామో అదంతా చూసి వాళ్ళంతా చూపించి ఇచ్చేసినాము. అట్లా చేస్తూ ఉండాము. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. I'll just give a summary of her speech. My name is Anjali Devi. I belong to Madaksira Mandal of Anantapur district in Andhra Pradesh. I belong to a very poor family. I used to work as a daily wage laborer for a long time. In 2005, I joined a SAG in my village, and I started saving some money every week and started borrowing loans from my SAG to educate my family and meet other needs. In 2009, I found out about non-pesticide management method of agriculture from SERP. I also received a training in this method, and thereafter I purchased I took a loan of rupees 10,000 from my SG and took a half-acre land on lease in my village. Then I started cultivating rice using the SRI method and also started the polycropping system on my land, and I started earning about 1 lakh rupees a year from farming. As a result of this, I've been able to educate my family members well. I've been able to build a pakka house, and I've also been selected as a community resource person in my Mandal Samakhya, which is the cluster level federation of the SAGs, to teach or train other farmers in my Samakhya in non-pesticide management and SRI methods of agriculture. People from all over the world, including Aung San Suu Kyi, the Myanmar leader, had come to visit me to learn about my story and my experience. And today I can proudly say that I'm an inspiration to the other farmers in my mandal. Thank you. Thank you, Srimati Anjuma. Now I would like to invite Srimati Prema Gopalan and Srimati Shanta Gavali from Swayam Siksham Prayog, SSP,
which is self-education for empowerment. It's a wonderful transition now when we are moving on from the innovators who invented something by observing problems on their own to those who displayed initiative and participated in government-run programs and were able to enhance the livelihood conditions of themselves and the ones who are close to them. We are moving now to those institutions who, through observation, initiative, innovative thinking, and persistence, have been able to build up an organization which sustains thousands and now lakhs of lives. So I would like to invite Srimati Prema Gopalan to please guide us as to what all initiatives she has taken through her organization. And along with her, I would also invite Srimati Shanta Gowli to be here as and when she is required to speak. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries and my friends, I'm here today to tell the story of Sakhis who are today's entrepreneurs. And with me is Shanta, who will come and tell her story. But we are looking at a journey which started with the Maharashtra Latur earthquake in 1993. The earthquake was a turning point in my life, and it was a turning point for all the people, lakhs and lakhs of people who were affected. The earthquake on one side was the most massive disaster at that time experienced by our country. But when we went there, I saw a turning point for the lives of people if they were really involved and supported. We partnered with the government of Maharashtra, World Bank and other agencies to work in the villages where repair and strengthening of houses was very much needed. We came away with a story that today is very relevant to the work of SSP, a story that began with involving over 500 women in their villages to be the most effective mediators between government and their communities. These women showed the path and reached where most officials, most people would not go. They reported back to us saying that the people are ready, we need to support them. After the project was over, Swayam Shikshan Prayog was born as an organization with a strong belief that women can play the roles of resource persons. They are already farmers, producers, they can be entrepreneurs and leaders in their own community, as we have seen right now before me. Swayam Shikshan Prayog went on to build the capacities of women in Latur and Usmanabad, and then has spread after that, after the Bhuj earthquake, to Gujarat, after the tsunami to Tamil Nadu, and to Bihar, proving that when women come together, they are quite a force. And this force has resulted in over 1 lakh women being part of the network, the SHG network, and looking forward, saying what next. This put a huge responsibility and accountability on our organization. And at that time, with the federations and the SHG network in front of us, we created 4 social enterprises when that word was not really known in 2006
for skill building, for finance, for creating rural marketing opportunities as a way of innovating and solving the problems there and then. As we all know, as we are talking, over 400 million people in our country are at the base of the pyramid where they lack skills, formal education opportunities, and even very essential services, health, water, sanitation, and energy. We had an opportunity to look at things very differently, and I believe that is the innovation. We partnered with BP Energy at that time, and we were very, very fortunate to have Professor C.K. Prahlad with us, facilitating this journey in very, very unknown areas. And since then, grassroots women have contributed to the development of technologies and products as part of a partnership that we have facilitated with over 13 companies that includes Godrej, Eureka Forbes, First Energy, Delight, and so on. Taking this model forward was a huge challenge, but by then we had set up a business arm, which is Sakhi Unique Social Enterprise, to incubate and support women as a rural marketing and distribution network. And that has been recognized by the Bihar government and the Maharashtra government. With USAID support, as I'm talking to you now, we will have 1,000 women entrepreneurs this year in Maharashtra and Bihar in some of the poorest districts. These women, on one hand, popularize the idea of clean energy in areas where it's not known. On the other, they convince people and market these solutions and earn sustainable incomes month on month. We are looking at now all the needs, the very needs that rural people have. Why can't we actually look at rural production units and rural businesses which women can take up and be the last mile network in their areas? So we're looking at sanitation, energy, health services, and drinking water, which affect people the most and need solutions. We need nano businesses, as Rishikesh was rightly saying. The products are not affordable. We need technologies which are nano. Siddharth. Siddharth. Honorable Minister and the dignitaries, namaste again. And as I was saying, in Maharashtra and in Bihar, we have, as I'm talking to you, more than 1,000 women or Sakhis being launched to serve their communities through innovative technologies and solutions that, as I said, are low cost, affordable, and can be marketed by the women to their communities. We are looking at the impact of these Urja Sakhis. We are looking at the impact which is they're reaching out to over 500, they're reaching out to 5 lakh people in their communities, 5 lakh households, who are made aware of all the environment-friendly products, extremely hard to
change behavior. They are doing this work. And this is resulting in over 1 crore of savings month on month in these thousands of households on fuel, water, and health expenditure. What is more important is that this work is built on a sustainable model where women in villages are able to earn incomes. And we are looking at the way forward where we expect, with government support and with the partnership of private sector and other sectors, we can establish a platform for rural women entrepreneurs who can innovate, create micro businesses in the rural areas. So rural to rural production units, and a rural network of women entrepreneurs from the self-help groups. This is easily replicated if supported with a micro venture fund and local partnerships. So we are looking at grassroots women networks, Sakhi networks as we call them, and communities which are transformed. Thank you very much. I want to introduce to you Shanta Gauli, who's a Urja Sakhi, and she will let us know what she is doing. Thank you. नमस्कार, मी महाराष्ट्रातील एका छोट्याशा गावामधून आलेले आहे आणि महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये मी ऊर्जा सखी म्हणून काम करते. ऊर्जा सखी होण्याच्या अगोदर मी काहीच करत नव्हते, गृहिणी होते. नंतर आम्ही बचत गटातून एक व्यवसायाला सुरुवात केली की छोटासा व्यवसाय होता. आम्ही 50 रुपयाचा फक्त बचत गट भरत होतो आणि त्यातून एक व्यवसायाचा निर्णय आमच्या गटाने घेतला. पण खूप मोठा व्यवसाय आम्ही सुरू करू शकत नव्हतो की कारण आमच्याकडे पैसे नव्हते. मग आम्ही एक छोटासा व्यवसाय जो घरातून काही प्रोडक्शन होईल असा व्यवसाय सुरू केला की ज्या सगळ्या महिलांकडून जे उपलब्ध असेल ते सामान गोळा केलं. जसे की तांदूळ असेल, कुणाकडे आंबे असतील, कुणाकडे मसाले असतील, अशा पदार्थातून एक आम्ही पापड आणि लोणच्याचं एक मराठी थँक्यू आणि पापड आणि लोणच्याचा एक व्यवसाय सुरू केला. आणि तो व्यवसाय तर असा होता की गावातील प्रत्येक गावामध्ये घरात तर ते असतंच, म्हणून लोक हसले आमच्यावर की हे काय सुरू केलं आहे म्हणून. तर त्यावेळेस मी बाहेर पडले आणि तालुक्यात आणि जिल्ह्यात जाऊन हे विक्री करू लागले. घरोघरी जाऊन लोकांना माहिती सांगू लागले की हे आमच्याकडे असं असं प्रोडक्ट आम्ही बनवतो. तर भरपूर सुरुवातीला लोकांनी घेतलं, कुणी नाही घेतलं, पण त्यातून आम्ही थोडे मार्ग काढून हा व्यवसाय करत होतो. आणि त्याच वेळेस मला स्वयं शिक्षण प्रयोग या संस्थेबद्दल माहिती मिळाली की उस्मानाबाद जिल्ह्यात ही संस्था आहे आणि ती महिलांसाठी खूप काही करते. तर त्यावेळेस मी त्या संस्थेमध्ये गेले आणि मी तिथं पाहिलं की ऊर्जा सखीसाठी तिथं एक ट्रेनिंग चालू होते. आणि ह्या ट्रेनिंगमध्ये मी जाऊन पाहिलं की अरे हे गावात तर ज्या समस्या आहेत की महिला चुलीवर स्वयंपाक करतात किंवा संध्याकाळी लाईट नसते, लोडशेडिंग असते, त्यावेळेस रॉकेलचे दिवे लावतात. तर त्यासाठी एक सोलार लाईट तिथं उपलब्ध होते. आणि चुलीवर स्वयंपाक जे महिलांची तब्येत बिघडते त्यासाठी एक ऊर्जा शेगडी म्हणून बायोमास इंधनावर चालणारी जी शेगडी आहे ते एक उपलब्ध होते आणि त्याबद्दल तिथं ट्रेनिंग सुरू होतं. तर मला खूप आनंद झाला की जे वर्षानुवर्ष मी पाहते महिलांसाठी की जे समस्या आहेत त्यांच्या, तर हे त्यासाठी खूप चांगला उपाय आहे. आणि मी सखीमध्ये सखी ऊर्जा सखी म्हणून मी तिथे प्रवेश घेतला आणि बचत गटातून कर्ज काढून 10,000 रुपयाचं कर्ज काढून मी ते प्रोडक्ट खरेदी केले. मला खूप आनंद वाटत होता की मी जाऊन गावामध्ये हे दिलं तर तिथल्या लोकांना खूप आनंद होईल. पण झालं उलटच. मी ज्यावेळेस गावात गेले त्यावेळेस लोक म्हणाले की काय तुम्ही शांतता हे घेऊन आलात, आम्हाला तर सगळं फुकटमध्ये
लाकडं वगैरे सगळे मिळतात शेतामध्ये, आम्ही जाऊन आणतो, तर तुम्ही हे कशाला घेऊन आलात म्हणून लोक हसले माझ्यावर. आणि तरी पण मग मी खूप निराश झाले की बाबा मी हे गावात हे करण्यासाठी मी आले आणि मला लोकांनी असा प्रतिसाद दिला. मी निराश होऊन घरी गेले तर घरच्यांनी ओरडले की तू हे पैसे गुंतवलेस, आता हे पैसे कसे काढायचे. पण मी परत दुसऱ्या दिवशी जाऊन लोकांना समजून सांगितलं की तुम्ही तुमच्या महिला ज्या आहेत, तुमच्या बायका ज्या आहेत, ते दिवसभर शेतामध्ये